as to that key people who for millions of years had lived in forests, in caves, in temporary shelters and rock shelters began to eventually live in villages and cities. Well, the story is a long one and it is related to several development that took place at least 500,000 years before the establishment of first cities. In this stanza, that say that कि we know that and very हम लोग आश्चर्यचकित हैं कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं और काम चलाऊ घरों, आश्रमों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांव और शहरों को कैसे डेवलपमेंट किया था. वी वेंडर अबाउट दैट कि मिलियंस ऑफ ईयर्स हैड लिव्ड इन फॉरेस्ट, मिलियंस ईयर्स तक दे लिव्ड इन फॉरेस्ट, केव्स, टेम्परेरी शेल्टर्स and rock shelters began to eventually live in villages and cities. Right now they live in villages and cities. What was the history? Well, the story is a long one and is related to several developments that took place at least 5,000 years before the establishment of first stage. लगभग जो फर्स्ट सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ था आज से 5,000 वर्ष पहले घटित हुआ था. Now, one of the most far-reaching changes was the gradual shift from nomadic life to settled agriculture. Nomadic life मतलब कि जो एक प्लेस पे फिक्स ना हो. तो one of the most far-reaching changes was the gradual shift from nomadic life to settled agriculture, which began around 10,000 years ago. That means कि nomadic life था and agriculture जो settled हुआ. There is a huge difference. Nomadic life, that means कि no fixed place. Human beings when started to searching the food, they wander from one place to another place. Then next day they wake up and again search the food. They go another place. That means they lives our lives in nomadic way. So from settled agriculture, how to they make settled agriculture. settled agriculture कैसे बनाया, which being around 10,000 years ago, जो कि 10,000 years पहले था. As you will be see in the theme 1, prior to the adoption of agriculture, people had gathered and plant produced a source of food. उन्होंने जो गैदरिंग किया एंड प्लांट जो था वो सोर्स ऑफ फूड था. फूड के सोर्स जो था वो क्या था, plant. And slowly they learned more about different kinds of plants, where they grew, the seasons when they bore food, and so on. Day by day human beings know that how to they grow the plants, right? And then how to they suitable for how which way they suitable in this season, which seasons. सो पेड़ पौधों को उपज इकट्ठा किया करती थी. धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी ली दे, गैदर द नॉलेज अबाउट द प्लांट्स. वो कहाँ उगते हैं, कैसे उगते हैं, किस मौसम में उगते हैं, एक्सेट्रास. सो दे नो दैट कि इन विच सीजन विच टाइप ऑफ प्लांट्स वी कैन ग्रो, सो ऑन. नाउ फ्रॉम दिस दे लर्न टू ग्रो plant in West Asia. From this they learn to grow plants. इस तरह से उन्होंने जाना कि किस तरह से plants grow हुआ. In West Asia, wheat and barley. West Asia में wheat and barley, peas and various kinds of pulses were grown. So in this sentence we know that कि पश्चिमी एशिया में गेहूँ, जौ, मटर, कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थी. इन वेस्ट एशिया the human beings grow barley, peas and various kinds of pulses in dal were grown. In East South Asia the crops that grew easily were millet and rice. जैसे आप जानते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान, राइस की फसलें बहुत आसानी से उगाई जा रही थी. एंड around the same time people learned how to domesticate animals such as sheep, goat and cattle, pig and donkey. on this time इसी समय ह्यूमन बींग्स ने जाना कि एनिमल्स को रेयरिंग कैसे किया जाए, एनिमल्स का पालन, पशुपालन जिसे कहा जाता है, वो कैसे किया जाए. सो अराउंड द सेम टाइम पीपल learn
They learned how to domesticate animals, and the domesticated animals was sheep, goat, cattle, pig, and donkey. Plant fibers such as cotton and flax. They grow the fibers and flax, cotton flax, and animal fibers such as wool were now woven into cloth. Somewhat later, about 5,000 years ago, domesticated animals such as cattle and donkeys. Cattle and donkeys were harsh to plug or carts. नाउ सी दैट स्टूडेंट कि जैसे ही उन्होंने खेती करना शुरू किया उन्होंने एक और चीज़ जानी कि पशुओं को कैसे पाला जाए। तो इन्हीं उन्होंने भेड़, बकरी, ढोर, सुअर, गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीखा। तब पौधों से निकलने वाले जो रेशे होते थे, फाइबर्स, दे यूज़ कॉटन्स, पटसन। पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे आज आप देखते हैं सीप पे जो हम लोग ऊल फाइंड आउट करते, कुछ समय बाद आज से लगभग 5,000 साल पहले ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों और गाड़ियों में जोता जाता था। इन द अर्ली स्टेज अबाउट 5,000 years ago, domesticated animals such as cattle and donkeys were harnessed to plug and cart। इन सब का यूज़ किया जाता था खेती करने के लिए। दिस डेवलपमेंट लेड टू अदर चेंजेस एज वेल। When people grew crops, they had to stay in the same place till the crops ripened. In this way, we know that कि how to human beings settled, उन्होंने settle कैसे हुआ। तो first thing, the development led to other changes when people grew crops। जब वो crops grow करते थे, they had to stay in the same place। उस place पे वो stay करते थे, उसी place पे वो आराम से stay करते थे till जब तक कि वो खेती पूरी हो नहीं जाती, जब उसको काट ना लेते थे। सो सेटल लाइफ बिकम मोर कॉमन। ड्यू टू दिस रीजन सेटल लाइफ मोर कॉमन हो गई, एंड विद दैट पीपल बिल्ड मोर परमानेंट स्ट्रक्चर्स इन विच टू लिव। इस तरह से उन्होंने अपना परमानेंट रहने का जो वे था वो फाइंड आउट करना शुरू कर लिया। सो नेक्स्ट, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन सम कम्युनिटीज लर्न हाउ टू मेक अर्थन पोट्स। सम कम्युनिटीज़ थी जो उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को कैसे बनाया जाता है, इन सब की चीज़ों के बारे में जानना या बनाना सीख रहे थे। पॉट्स पहले जो थे कि हमने देखा था कि आर्कोलॉजिस्ट लोग ने भी यह देखा है कि बहुत से मिट्टी के घड़ों पे डिजाइंस वगैरह बनाए गए थे। तो दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन सम कम्युनिटीज़ लर्न हाउ टू मेक अर्थन पॉट्स। कुछ कम्युनिटीज़ ने अर्थन पॉट्स बनाने शुरू कर दिए। These were used to store grain and other produce and prepare and cook a variety of foods made from new grains that were cultivated। So उन्होंने क्या किया कि अनाज और अन्य उपज इकट्ठा करने के लिए और नए उगाए गए अनाजों को किस तरह से भोजन बनाने के लिए बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा, किस तरह से करना है, ये सब देखा गया। वस्तुतः खाद्य पदार्थों को हम ऐसे सामान्यतः रेयरली वी नो दैट पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए, सुपाच्य मतलब गुड डाइजेस्टिव बनाने के लिए, भोजन बनाने के मेकिंग ऑफ फूड्स की टेक्निक्स भी उन्होंने चेंज की। सी दैट दिस वेर यूज्ड टू स्टोर ग्रेन एंड अदर प्रोड्यूस एंड टू प्रिपेयर एंड कुक अ वैरायटी ऑफ फूड्स made from new grains that were cultivated। In fact, great deal of attention was given to processing food to make them tasty and digestible। फूड को टेस्टी एंड डाइजेस्टिबल बनाया गया कि किस तरह से फूड को डाइजेस्टिव बनाया जाए, मोर इजी हो जाए एंड टेस्टी ऑल्सो। सो द वे स्टोन टूल्स वेर मेड ऑल्सो चेंज, एंड वन थिंग्स वी नो दैट पत्थर के औजार बनाने के तरीक़ों में भी बदलाव कर गया। फर्स्ट सेटल जो ह्यूमन बींग्स थे, वेंडरस लाइफ था, जब नोमेडिक लाइफ था, तो पत्थरों को खुरच कर घींच कर नुकीले बनाए जाते थे, बोन से भी बनाए जाते थे और उससे वो हंटिंग करते थे। बट नाउ वाइल अर्लियर मेथड ऑफ मेकिंग टूल्स कंटिन्यूड, डे बाय डे ह्यूमन बींग्स मेक अ एडवांस लेवल टू मेकिंग टूल्स। Some tools or equipment were now smoothed and polished by elaborate process of grinding। That means कि कुछ ऐसे भी स्टोन्स थे जिनको कि चालू तरीक़ों से यूज़ किया जाता था और कुछ उपकरणों को घिसाई की विस्तृत प्रक्रिया के जरिए चिकना और पॉलिशदार बना दिया जाता था। घिस कर उन्हें पॉलिश करके एकदम चिकना बना दिया जाता था। इन अर्ली स्टेज इन मिडल स्टोन एज, दिस हैपन इन मिडल स्टोन एज, दिस थिंग्स स्टोन एज में जो पॉलिश्ड
स्टोन से पॉलिश जो हथियार बनाए जाते थे, दिस वॉज इन मिडल स्टोन एज। मिडल स्टोन एज में ह्यूमन बींग्स ने इस तरह की चीज़ों को बनाना शुरू किया। देन न्यू इक्विपमेंट इंक्लूडेड mortars and pestles for processing and grinding grain, as well as stone axe and hoes, which were used to clear land for cultivation as well as for digging the earth to sow seeds. अनेक न्यू इक्विपमेंट्स भी बनाए गए, जैसे कि अनाज की पिसाई और सफाई के लिए ओखली, मूसल और पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया और फावड़ा जिनसे जुताई के लिए भूमि को साफ किया जाता था, बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। इन दिस न्यू टाइप्स ऑफ टूल्स द ह्यूमन बींग्स more comfortably uses and make our life so comfortable, which were used to clear land for cultivation as well for digging मतलब गड्ढा करना, to earth to sow seeds, सीड्स को बोने के लिए, तो उसमें नुकीले और धारदार हथियारों का उपयोग किया जाता था। some areas people learn to tap ores or metals such as copper and tin. In some areas, people learn to tap the ores of metals such as copper and tin. कुछ इलाकों में तांबे और टीन, जिसको रांगा भी कहा जाता है, जैसे धातुओं के खनिजों का उपयोग करना सीख गए थे। दे नो दैट व्हाट इज द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड कॉपर्स एंड टिन्स। मेटल्स, कॉपर्स और टीन का किस तरह से यूजेस किया जाता था। Sometimes copper ores were collected and used for their distinguishing bluish green color. Many times तांबे के खनिजों को इकट्ठा कर उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो उनका कलर्स था ब्लू एंड ग्रीन, दे वर यूज्ड। Now this prepared the way for the more extensive use of metal for jewelry and for tools subsequently. This uses of these things to prepare for the extensive use of metals for ज्वेलरी बनाने के लिए भी इन टिन्स का, इनका यूज किया जाता था। जैसे आप देखते हैं कि तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनको इस्तेमाल तो किया जाता था, और आगे चलकर इनसे गहने और औजार बनाने का भी रास्ता खुल गया। दैट मीन्स कि द वे ऑफ मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड वेपन्स। There was also growing familiarity with other kinds of produce from distant lands and seas. दूरस्थ स्थानों मतलब जो कि समुद्री इलाके होते तो वहाँ से भी हमें कुछ चीज़ें की जानकारी प्राप्त होने लगी थी। जैसे ये चीज़ें थी लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियाँ, ऑब्सिडियन, ज्वालामुखी का पक्का जमा हुआ जो लावा होता था उसको ऑब्सिडियन कहा जाता था। This included wood, stones including precious and semi-precious stones, metals and shells, obsidian, hardened, volcanic lava था जो। तो then clearly people were going from place to place carrying goods and ideas with them. The people know how to collect the knowledge from one place to another place and how to disperse from people. उसको लोगों में कैसे दिया जाए, कैसे लोगों को बचाया जाए, उसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। विथ इंक्रीजिंग ट्रेड द ग्रोथ ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। विद द इंक्रीजिंग ऑफ ट्रेड, जैसे ही बिजनेस बना, विद द इंक्रीजिंग ऑफ ट्रेड द ग्रोथ ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स, जैसे ही विलेजेस का एक्सपांसन शुरू हुआ, द एक्सपांसन ऑफ ट्रेड, वैसे एक्सपांसन ऑफ ट्रेड हो गया, द ग्रोथ ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स एंड द मूवमेंट्स ऑफ people started the expansion of trade and they move from one place to another place. With this they expand our villages and towns. In place of small communities of early people, there are now grew small states. First human beings started small communities to stay with people. Therefore after the expansion of trade, villages and towns, they know how to make small towns or small states. While these changes took place slowly over several thousand years, the pace quickened with the growth of the first cities, and this growth make expansion of first cities. Also the changes had far-reaching consequences.
Some scholars have described this as a revolution as the lives of people were probably transformed beyond recognition. लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि ह्यूमन बींग्स ने अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा चेंजेस कर लिया था. लुक आउट फॉर कंटिन्यूस एंड चेंजेस एंड एक्सप्लोर दिस टू कॉन्ट्रास्टिंग थिम्स इन अर्ली हिस्ट्री. जैसे ही हम जान रहे हैं कि व्यापार में वृद्धि होते ही गांव और कस्बों का विकास हो गया, लोगों का आवागमन बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे छोटे जन समुदायों के स्थान पे छोटे मोटे राज्य विकसित हो गए. परिवर्तन बहुत धीमे गति से हुए. इस प्रक्रिया में कई साल बीत गए, लेकिन जब शहर स्थापित हो गया और इनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों में रफ्तार भी आ गई. मतलब पहले जो तो हम लोग गाँव में बिजनेस का एक्सपांसन हो रहा था, ट्रेड का एक्सपांसन अर्ली सोसाइटीज़ में ह्यूमन बींग्स कर रहे थे, तो ग्रोथ लेवल बहुत स्लो था. बिकॉज ऑफ दे टेक 1000 ईयर्स टू मेक आवर सिटीज़. उन्होंने सिटीज़ बनाने के लिए अराउंड 1000 ईयर्स ले लिए. बट आफ्टर द एक्सपांसन ऑफ सिटीज़, बट लेकिन सिटी के एक्सपांसन होने के साथ ही साथ द लेवल ऑफ डूइंग इज़ वेरी फास्ट. उनका जो बढ़ने का लेवल था वो बहुत फास्ट हो गया. देन इसके अलावा इन परिवर्तनों और इनके परिणाम जो निकले, कुछ विद्वानों ने इसे क्रांति कहा, पुकारा, क्योंकि लोग जानते समझे इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि इन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया था. जो उस समय स्कॉलर्स थे उन्होंने देखा कि इस तरह से ग्रेजुअली और फास्ट चेंजेस हो गया है, तो उन्होंने उसको रिवोल्यूशन नाम दे दिया. जब आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करेंगे तो आप ये जानेंगे कि परिवर्तनों का अवशेष अवलोकन करेंगे कि किस तरह से परिवर्तन हुआ. Remember too that we have selected only some examples of early societies for detailed study. There were other kinds of early societies including farming communities and pastoral peoples. And these were other peoples who were hunter gathering as well as city dwellers apart from example selected. सो ये हमें रिमाइंड रखना है कि प्रारंभिक समय में कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना गया. ऑल थिंग्स, हर चीज़ को नहीं चुना गया. जो मेनली थे उन्हीं को चुना गया. जैसे कि आप देखें प्रारंभिक समाज में किसान समुदाय, पशुचारक, ग्वाले लोग, शिकारी संग्राहक समुदाय, यह लोग इसमें चुने गए थे. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दैट कि हाउ टू ह्यूमन बीइंग्स स्टार्ट आवर अर्ली सोसाइटीज़. उन्होंने अपने अर्ली सोसाइटीज़ को कैसे स्टार्ट किया एंड व्हाट इज़ द वे ऑफ स्टार्टिंग एंड व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग थिंग्स एंड व्हाट इज़ द right now we have. Now early societies human being mostly depend upon two themes. These themes are beginning about मतलब how to they live and how to the expansion of our cities. उन्होंने अपने cities को कैसे एक्सपांसन किया and how to they live and how to collect their food. उन्होंने अपने foods को कैसे गैदरिंग करना शुरू किया. So we most thinkable things are कि फाइनली पीपल्स आर लर्न टू कलेक्टिंग द फूड. हाउ टू दे कलेक्ट द फूड एंड फर्स्ट दे स्टार्टिंग लाइफ वेंडरिंग. उन्होंने नोमेडिक लाइफ को जीना शुरू किया था. तो उस नोमेडिक लाइफ से हाउ टू कन्वर्ट इन सिटीज़ लाइफ, उन्होंने अपनी सिटीज़ लाइफ को कैसे आगे बढ़ाया. दिस थिंग्स आर इन दिस चैप्टर वी लर्न. देन अर्ली सोसाइटीज़ एंड नाउ सोसाइटीज. जो अर्ली सोसाइटीज़ थी एंड अभी की जो सोसाइटीज है, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस. फर्स्ट दे स्टार्ट टू लिव इन कम्युनिटी. धीरे धीरे पहले उन्होंने कम्युनिटी में रहना शुरू किया था. हाउ टू दे स्टार्ट लिव इन कम्युनिटी? बिकॉज दे वॉज वेंडरस. वो वेंडरस थी तो उन्होंने फर्स्ट थिंग्स क्या, पौधे से बीज को कलेक्ट करना, उनको उगाना, उनको किस सीजन में उगाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया. देन दे स्टार्टेड टू स्टे वन प्लेस. उन्होंने वन प्लेस पे रहना स्टार्ट किया जब उन्होंने यह जान लिया कि किस तरह से हमें सीड्स को ग्रो करना है, हाउ मच टाइम टू टेक दे ग्रो ऐप एंड हाउ मच टाइम टू टेक व्हेन कट डाउन. जब हम इसको यूज़ कर लें तो उसमें कितना टाइम लगेगा. तो ऑन दैट टाइम दे सिचुएटेड ऑन द सेम प्लेस. उस प्लेस पे वो वहाँ रहते थे जब तक ये सारी चीज़ें हो नहीं जाती थी. तो दिस इज़ द बेसिस थिंग्स टू मेक सोसाइटी. दिस इज़ द मेन रीजन. और ये एक सबसे मेन रीजन था अर्ली सोसाइटीज़ के एक्सपांशन का,
कि ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड growing the crops, rearing the domesticated the animals. We know that कि पहले लोग जो ज्वार बाजरा जो उगाए गए तो उसके बाद जो उनके साथ लोगों ने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स किया, हमने भेड़ बकरी ढोर सुअर गधा इन सारी चीज़ें थी भी, देसी गोट पिग एंड डंकीज इनका। देन उन्होंने कुछ ऐसे प्लांट्स फाइंड आउट किए जिससे उन्होंने ऊल फाइबर्स फ्लैक्स सारी चीज़ें फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। दिस डेवलपमेंट लेड टू अदर चेंजेस एज वेल व्हेन पीपल ग्रू क्रॉप्स, पीपल ने ग्रू क्रॉप्स किया। दिस वाज आल्सो टाइम व्हेन सम कम्युनिटीज लर्न हाउ टू मेक पॉट्स। दिस इज द टाइम विथ स्टे, उन्होंने यह टाइम भी शुरू किया कि हाउ टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले मिट्टियों से बने हुए पॉट्स को उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया। देन दे वे टू स्टोन टूल्स वेर मेड ऑल्सो चेंज, उन्होंने चेंजेस किया अपने स्टोन्स के वेपन्स में। डे बाय डे मेक आवर गुड स्टोन्स पॉलिश स्टोन्स। एंड इन थर्ड स्टेज ऑफ स्टोन एज इज न्यू स्टोन एज में दे इन्वेंशन ऑफ फायर एंड वेल्स का इन्वेंशन किया। दिस इज अ मोर बेनिफिशियल एंड वेरी ह्यूज इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इन न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज में सबसे बड़ा जो उनका इन्वेंशन था दैट इज द फायर एंड व्हील। When the expansions of trade, they use move from one place to another place, use cattle use करना शुरू किया with the invention of wheel। जैसे व्हील का उन्होंने इन्वेंशन किया तो उन्होंने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आने जाने देन माल ढुलाई के लिए यूज़ करना शुरू किया। with the invention of fire they making a good food, digestive food। जैसे उन्होंने न्यू स्टोन एज में फायर का इन्वेंशन किया तो दे make an idea of making the food and they feared from wild animals। human beings in early stage fear from wild animals, but wild animals fear from the seeing the fires। वो फायर देख के डरते थे तो they know that they use the techniques कि फायर इज़ अ वेरी गुड थिंग्स फॉर आवर सेल्फ, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है बिकॉज कि इससे वाइल्ड एनिमल्स भी डर रहे हैं एंड वी मेक आवर फूड। दे उन्होंने उनकी पूजा करना शुरू कर दी फायर्स की। दे बिकम अ गॉड फॉर ह्यूमन बींग्स इन अर्ली सोसाइटीज। सो आफ्टर एक्सपांसन ऑफ स्मॉल विलेजेस, द एक्सपांसन ऑफ स्मॉल स्टेट्स, आफ्टर द एक्सपांसन ऑफ स्मॉल स्टेट दे मे टेक 1,000 of years for expansion of small states into cities। when they expansion of cities, जब उन्होंने cities का expansion कर लिया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि किस तरह से रैपिड ग्रोथ हुआ और ह्यूमन बींग्स आज इस लेवल पर आ गया है। तो इन आवर अर्ली सोसाइटीज़ डे स्टूडेंट्स हमने यह चीज़ें देखी कि किस तरह दो थिंग्स पे चीज़ें रिलेटेड थी। एक तो उनके गैदरिंग फूड एंड स्टेइंग, यही दो चीज़ों को प्रारंभिक समाज में किस तरह से बनाया गया था, प्रारंभिक समाज क्या था, कैसे लोग रहते थे, ये सारी चीज़ें हमने इस पहले पार्ट में अपने जाना। अर्ली सोसाइटीज़ में हमने पहले पार्ट में जाना। इन दिस अर्ली सोसाइटीज़ आप जानते हैं कि आपके अर्ली सोसाइटीज़ में टाइम लाइन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम एंड राइटिंग एंड सिटी लाइफ है। तो ये आपका पहला इंट्रोडक्टिव पार्ट था अर्ली सोसाइटीज़। आई थिंक एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू very much।